નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુભાષિની યાદવજીએ પ્રેસ વાર્તા સંબોધી। પ્રેસ વાર્તામાં સુભાષિની યાદવ સાથે ગુજરાતના પ્રવક્તા નૈશદ દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। બીજેપીના શ્વેતપત્ર સામે કોંગ્રેસ અન્યાય કાર્ડ લાવી 2014 થી 2024 સુધીના બીજેપીના કાર્યો ગણાવ્યા। 10 સાલ અન્યાય કાર્ડના નામે પત્ર બહાર પાડ્યું। આ અન્યાય કાર્ડ નામક પત્રમાં 10 વર્ષના કાર્યોના મુદ્દા ગણાવ્યા। આર્થિક અન્યાય, સામાજિક અન્યાય, રાજકીય અન્યાય જેવા મુદ્દા ઉઠાવ્યા। બેરોજગારી, મોંઘવારી, મહિલાઓ સાથે ઉત્પીડન, કાળા નાણાંની વાતો ક્યાં ગઈ? 15 લાખ પ્રત્યેકના ખાતામાં ક્યાં ગયા? દેશના તમામ વર્ગના લોકો રસ્તા ઉપર આવી ગયા। દેશમાં નવો ટ્રેન્ડ ભારત રત્નના નામે શરૂ કરાય। ખેડૂતોની હાલત જોઈશું। સ્વામીનાથન ખુશ છે? ખેડૂતો માટે સાંસદ સુધીનો રસ્તો બંધ કરી દેવાયો। ચૌધરી ચરણસિંહ છેલ્લા શ્વાસ સુધી ખેડૂતો માટે લડ્યા। શું તેઓ ખુશ હશે? 10 વર્ષમાં કોરોના આવ્યું, નોટબંધી આવ્યું, શું કાળું નાણું પાછું આવ્યું? કોરોનામાં હજારો લોકોના મૃત્યુ થયા, કોણ જવાબ આપશે? બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના નારા હેઠળ શું કાર્યવાહી થઈ? બિલ્કિસ બાનુને શું ન્યાય મળ્યો? તેના આરોપી છોડી દેવાયા। બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંવિધાનમાં દરેકને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર। ફક્ત ભાઈઓ બહેનો કહી દેવાથી દેશ નથી ચાલતો। ભૂખમરામાં ભારતનું સ્થાન 111મા ક્રમે। ખેડૂતો પ્રધાનમંત્રીને મળવા 10 મિનિટ માંગી રહ્યા છે, પણ તેમને ફક્ત માર મળી રહ્યો છે। ખેડૂત એમએસપીના કારણે રસ્તા ઉપર ઉતરી છે, કોઈ સાંભળવાવાળું નથી। મહિલા આરક્ષણ લાગુ થવું, પણ શું 2024માં દેશની 130 મહિલાઓ સંસદમાં પહોંચી શકશે? 33% મહિલા આરક્ષણમાં શું માન્ય રખાશે? 2022માં ગરીબીનો નાશ થશે? રૂપિયાનો ભાર વધશે? પેટ્રોલ 100 ને પાર? શું આ બધું થવું? સુરત વેપારીઓનું કર્મભૂમિ છે, એના માટે મંદિર છે, પરંતુ જીએસટી અને એમએસએમઈ સંતુષ્ટ છે। અમે વિપક્ષમાં છીએ, એટલે અવાજ ઉઠાવવો અમારો ફરજ છે। ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે, 1-1.5 મહિનાથી એમનો એ પણ ઠપ છે। જવાહરલાલ નહેરુથી મનમોહન સુધીની સરકારમાં દેશ પર 50 લાખ કરોડનું દેવું હતું, તે દેવું 150 લાખ કરોડથી વધુનું થઈ ગયું છે। એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત 120 ગણુથી વધારે છે। ખેડૂતોની વાતો નથી સાંભળવામાં આવતી, તેમની ઉપર ગોળીબારી થઈ રહી છે। 10 साल अन्याय काल में हमने बेरोजगारी, महंगाई, जवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार, ऐसे अनेक जन जन के साथ परेशानी जुड़ी हुई है, जो उसका सामना करा। आप जैसे कि जान रहे होंगे कि 45 सालों में आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं पूछना चाहूंगी केंद्र में बैठी सरकार से, क्या हुआ उस हर साल 2 करोड़ रोजगार का, जो आज 10वें साल में हम खड़े हैं। हम उम्मीद करते थे कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज देश का युवा दर दर भटक रहा है रोजगार की तलाश में। क्या हुआ उन वादों का जिसमें काला धन वापस आने वाला था? क्या हुआ उन जुमलों का जिसमें 15 लाख प्रत्येक नागरिक के खातों में आने वाले थे? आने वाली 2024 के चुनाव में क्या होगा नया जुमला? किस तरह से हम जनता के बीच में जाएंगे? क्या इस बारे में सरकार ने विचार किया है? कांग्रेस पार्टी के सीधे सवाल, देश का जवान, किसान, महिला, युवा आज सड़क पर है। दिल्ली छावनी में बदल गई। दिल्ली में किसान देश भर से पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 2 मिनट का समय भी नहीं है कि वो उनसे मिले और उनकी बात सुने। राजनीति करने का समय पूरा है। आजकल हमारे देश में एक नई तरीके की राजनीति शुरू हुई है, भारत रत्न की राजनीति, जहां पर एक तरफ तो संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार हम लोग 400 पार जाएंगे। अच्छी बात है, 400 पार जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या खलबलाहट है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आप दलों को तोड़ रहे हैं, अपने साथ लाने का काम कर रहे हैं, भारत रत्न की राजनीति कर रहे हैं। भारत रत्न क्या होता है? सर्वोच्च और सबसे उत्तम श्रेणी का नागरिक अवार्ड है हमारे देश का। हमारे रत्न होते हैं वो लोग। हमें गर्व है जिस तरह से हमारे देश में भारत रत्न से सम्मान किया जाता है सम्मानित नागरिकों को। उनके जिन श्रेणियों में उन्होंने काम किया है उसको सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनकी नीतियों का क्या?
क्या आज डॉक्टर स्वामीनाथन जी खुश होंगे देखकर किसानों की हालत? का लॉ जिस तरह से लगाया जाना चाहिए था, क्या उनको अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज किसान दर दर भटक रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से कीलें बिछाई जा रही है, उनका रास्ता रोका जा रहा है? लोकतंत्र का, संसद का रास्ता सड़क से जाता है। आज उस सड़क के मार्ग को बंद कर दिया गया है। किसके लिए? देश के किसान के लिए, आम नागरिक के लिए, देश की जान के लिए। इसकी जवाबदेही कौन देगा? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देने का काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया, हम उसका स्वागत करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो काम उन्होंने अपने जीवन काल में किए, जिस कारण उनको भारत रत्न से नवाजा गया, उन कामों को कौन लागू करेगा? उनके कामों की कौन चर्चा करेगा? चौधरी चरण सिंह अपने आखिरी समय तक किसानों के लिए लड़ते रहे, किसानों के नेता थे। क्या आज उनकी आत्मा शांत होगी ये देखकर जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है? जो महिला आरक्षण का जुमला मजाक किया गया था संसद में, वो कब लागू होगा? हमारी देश की आधी आबादी कब पहुंचेगी संसद में? कौन देगा इसका जवाब? 33% महिला आरक्षण में क्या आप कोटे के अंदर कोटा रखना जरूरी नहीं समझते थे? 60% जो देश की जनता है, जिस समाज से आती है, उसको नजरअंदाज करना, क्या इस सरकार को वो सुझाता है? कौन जवाब देगा इसका? यहां पर हमारे कुछ सीधे सवाल है सरकार से, जो मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कहा गया था कि 2022 में गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? गरीबी दर से और नीचे लोग चले गए, गरीबी से मर रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं। रुपया का कद बढ़ेगा, रुपया गिरता गया, लेकिन हमारे नेता का कद बढ़ता गया। पेट्रोल के प्राइस आप देख रहे होंगे 100 पार। इंसान को किस लिए छोड़ा है इस देश में रहने के लिए? सिर्फ इन चीजों के लिए कि वो इस चीज की मार झेले? हमें इन सब चीजों पर सोचना होगा कि जितने भी इस 10 साल में कदम उठाए गए, उससे जनता का क्या हित हुआ। किसान न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 लोग, हमारे देश के आम लोग न्याय मांग रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। युवा बेरोजगारी का शिकार, भागीदारी न्याय, जो पिछड़े, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, SC ST लोग हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है? जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि जिसका जितना हक, उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी नहीं, तो कैसे देश विकसित होगा? कैसे उनके लिए योजनाएं बनेंगी? किसान न्याय, किसान सड़क पर उतर आया है, किसान को MSP के चक्कर में दर दर भटकना पड़ रहा है, उसको उसकी अनाज की कीमत नहीं मिलेगी। श्रमिक न्याय, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा जैसी योजना लाकर किसान, जो हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं, मजदूर लोग हैं, उनके घर में दिया जलाने का काम किया था। लेकिन आज ये सरकार उसके लिए क्या कर रही है? हमारे सवाल ये है, फिर से जाकर ED के ऑफिस में हाजिरी मारनी पड़ेगी और उनका समय बर्बाद किया जाए, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए। क्योंकि राहुल जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल जी युवा न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल जी महिला न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल जी किसान न्याय और श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं। सिर्फ इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारे नेताओं को भी ED ऑफिस से सम्मन भेजा जाएगा और उनको वहां बुलाने का काम किया जाएगा, ताकि वो चुनाव में अपने आप की भागीदारी नहीं दे पाए। ये सब मुद्दे जो आपसे भी हमने डिस्कस किए, अच्छा ठीक है, जो हमारे मुद्दे रहेंगे लोकसभा में जाने के, हमने बताए बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना, किसान के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, किसान की संरक्षण करते हुए हम लोग अपनी उस नीयत से, और मजदूरों के हक में
काम करने का काम। क्या माध्यम रहेंगे जाने माध्यम जैसे मतलब वो तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आएंगे, अब जैसे न्याय यात्रा चल रही, मैंने आपको न्याय के 5 स्तंभ बताए, युवा, महिला, श्रमिक और किसान और जवान। तो इन्हीं सब के बुनियाद पे हम लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। SC ST અને OBC પર વધતા અત્યાચારો કેવા પ્રકારનું ન્યાય ભાઈ ભાઈથી લડી રહ્યું છે, સમાજ સમાજથી લડી રહ્યું છે। તમે સંપ્રદાયને ભડકાવવાનો પ્રયાસ કરી બીજેપીના લોકો કરી રહ્યા છે। ચીન અને પાકિસ્તાનના લોકો ભારતમાં 100 કિલોમીટર સુધી અંતર ઘૂસી ચૂક્યું છે। ક્યાં ગઈ તે લાલ આંખો? તમામ બાજુથી અને ચીનથી ઘેરાઈ ચૂક્યા છીએ। કોણ જવાબ આપશે? ઈડી અને CBIનું કામ ફક્ત અન્ય પક્ષોના લોકોને ટાર્ગેટ કરવાનું કામ। સુભાષિની યાદવ એમને એવી શંકા છે કે ચૂંટણી પહેલા ફરીથી અમારી પર ઈડી અને CBIની રેડો કરાવશે। રાહુલ ગાંધીએ જેટલા પણ મુદ્દા ઉઠાવ્યા તે તમામ બાબતો સાચી પડી રહી છે। આવનાર સમયમાં જનતા દ્વારા જ હવે ફેસલો કરવામાં આવશે। આવનાર સમયમાં કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો તમામ બાબતો આવરી લેવાશે।